Hello everyone, welcome to PT 79 Plus series, Reading and Writing Filling the Blanks number 12. It means that we have already discussed 11 repeated and real exam questions जो बहुत सारे students को पेपर में आए हैं and this is a special series which is created on your demand क्योंकि बहुत सारे students ने हमें कहा कि सर आपकी राइटिंग की स्ट्रैटेजी से हमारे नंबर्स आ रहे हैं, लिसनिंग की स्ट्रैटेजी से आ रहे हैं, स्पीकिंग की स्ट्रैटेजी से आ रहे हैं, रीडिंग की भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हम सबको बताएं ताकि हमारे स्कोर्स आ सकें. So that's why we have created this series and let's get started. First things first, my name is Bharat Bridge and I have scored a perfect 90 in on the 10 skills of PT. अब कैसे किया? There are two ways you can also achieve. One is using artificial intelligence technology जो Pearson अपने पेपर में यूज करता है आपको evaluate करने के लिए and same technology Marvel PT also uses. And second are the strategies जो हमारी strategies हैं Marvel PT की strategies हैं writing की, listening की, speaking की and reading की. Before starting the discussion, do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a daily basis. And PT reading is of 32 to 41 minutes. It means that आपको खुद टाइम मैनेज करना होता है, एक सिंगल टाइमर चल रहा होता है. That's why बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं आ पाता because they are not able to manage their time well. And it is not scored out of 90. जो PT का reading module है, that is not scored off of 90. That is approximately of 47 scores and there are 5 question types. And today's discussion topic is reading and writing filling the blanks. This is the real PT scoring कि 90 कैसे बनता है. If you see 47 marks आपके सिर्फ आते हैं reading से and rest marks come from your speaking and writing which is 32 and listening से 11 marks आते हैं. So PT का जो reading module है that is just 50% of your total reading scores. But उसमें से भी सबसे ज़्यादा important आपके reading के लिए reading and writing filling the blanks हैं because ये 22 marks देते हैं out of 90 for your reading and 22 marks out of 90 for your writing. And the strategy which you have to use with our big data analysis, artificial intelligence analysis, we find out that कि आप 3 minutes से ज़्यादा नहीं spend कर सकते हो एक RWFIP को solve करने के लिए. And number one mistake जो students करते हैं, they read all the words कि आपको सारे words पढ़ने की ज़रूरत होती है. The answer is no. आपको meanings नहीं समझने होते हैं, आपको सिर्फ skimming करनी होती है, right? स्किमिंग के लिए डिटेल लेक्चर्स हैं जो हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देते हैं एंड वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया एशिया नेपाल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड जो स्टूडेंट्स हमसे कोचिंग लेते हैं इंस्टीट्यूट में उनको भी वी टीच देम skimming techniques. So this is today's topic and I'm giving you 30 seconds as usual so that you can skim this and then we are going to discuss it. Okay? ओके. तो अब सबसे पहले हम इसको स्किम करेंगे. स्किम करने से हमें क्या चीज़ें पता करनी होती है? हमें टोन पता करनी होती है, हमें टेंस पता करना होता है, राइट? हमें एक आइडिया हो जाता है थीम के बारे में बिकॉज देन हम फॉरवर्ड रीडिंग के थ्रू बैकवर्ड रीडिंग के थ्रू अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं. एंड ऑल दीज स्ट्रैटेजीज वी टीच इन डिटेल in our lectures. So McLuhan's preeminent theory was his idea that human history could be something into four areas: this acoustic age, literary age, print age, and electronic age. He something the concept in 1962 book called the Gutenberg Galaxy, which was something just as the television was starting to become popular. He something the world was entering the fourth electronic age, which would be characterized by community of people brought together by technology. He called it a global village, and it would be an age where everyone had something to the same information through technology. The global village could be understood to be the internet. Okay. So यहाँ पे जो article है that is related to TV, internet, technologies, right? So let's see the first option now. अब आप ध्यान से देखिए सारे ही EDs हैं, right? बट सबसे पहले आपको ये पता चल गया इस आर्टिकल में मोर और लेस किसकी बात हो रही है. टेंस में हमारा कौन सा टेंस यूज हो रहा है? Past tense. This pronunciation is past tense, not past tense. Okay, right? These are plosives and we have a complete pronunciation course for our elite members. चाहे उनको 79 आपका target score हो PR के लिए या 65 हो,
without using plosives, without using correct pronunciation, it will be difficult for you. That's why we have a special course of pronunciation for our students. So अब यहाँ पे divided, proposed, postulated, partitioned. अब आपका ये किसके बेसिस पे सॉल्व होगा? ये आपका सॉल्व होगा vocab के बेसिस पे. रीजन, बिकॉज यहाँ पे सारे ही एक ही ईडीज चल रही हैं, पास्ट टेंस का फॉर्म है, हमें पता है टेंस कौन सा यूज हो रहा है, पास्ट टेंस. तो नाउ लेट्स सी डिवाइडेड क्या होता है, प्रपोज क्या होता है, पोस्टुलेटेड क्या होता है, एंड पार्टीशनड क्या होता है. अब डिवाइडेड मीन्स ऑब्वियसली बहुत क्लियर है, डिवाइड करना. ओके. प्रपोज्ड क्या होता है? प्रपोज्ड होता है कुछ आप सजेस्ट करते हो, ओके, या कुछ प्रपोज करते हो. ओके, बट क्या हम यहाँ पे कुछ प्रपोज कर रहे हैं? नहीं, उसने तो बोल दिया कि भाई 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है और हम 4th एज में एंटर कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे एज ही सेइंग दैट एज ही वर्ल्ड वाज एंटरिंग द 4th एज. तो ये एक एफर्मेशन है, कंफर्मेशन है, कुछ प्रपोजल थोड़ी दे रहा है, कुछ सजेस्ट थोड़ी कर रहा है. So that's why we are going to use our process of elimination, which is our friend, right? I will say best friend, not even friend, and we have eliminated one wrong option. What is process of elimination? उसमें हम अपने wrong options को eliminate करते हैं and we try to find out the best answer जो रह गया है, चाहे हमें समझ आए या ना आए. बट अगर हमने process of elimination से eliminate कर दिया है तो जो आंसर आपके पास remaining है that is the correct one. अब पॉस्टुलेट क्या होता है? पॉस्टुलेट क्या होता है? आप एक थ्योरी प्रपोज करते हो, सजेस्ट करते हो, और उसके बेसिस पे आप कुछ अपना यू कैन से आंसर फाइंड आउट करते हो, या कुछ भी आप आगे थ्योरी, मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल आप प्रपोज करते हो और उसके बेसिस पे आप अपने रिजल्ट्स शो करते हो. पर यहाँ पे कुछ क्या ऐसा प्रपोजल आ रहा है? द आंसर इज नो. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट पॉस्टुलेटेड. अब 2 ऑप्शंस बच गए हैं विच आर वेरी क्लोज, डिवाइडेड एंड पार्टीशनड. ओके, राइट. अब आपके लिए पार्टीशन भी डिवीजन ही तो करना होता है. जब हम कहते हैं पार्टीशन बना रहे हैं, कैबिन्स के पार्टीशन बना रहे हैं, हार्ड डिस्क पार्टीशन कर रहे हैं, राइट. बट अब यहाँ पे डिवाइडेड और पार्टीशंस में से क्या आंसर आएगा? डिवाइडेड एवरीवन इज क्लियर, जब आप पार्ट्स में ब्रेक करते हो किसी चीज को. बट पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन होता है प्रोसेस ऑफ डिवीजन. ओके, उस प्रोसेस को पार्टीशन कहा जाता है जब आप डिवाइड कर रहे हो, राइट. अब एग्जांपल दूंगा. तो आप अगर थोड़े से कंप्यूटर सेवी है तो हम क्या कहते हैं? हम हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर रहे हैं, राइट. क्योंकि हम सी पार्टीशन बना रहे होते हैं, डी पार्टीशन बना रहे होते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं हार्ड डिस्क को. या जब हम कैबिन्स भी बनाते हैं, जैसे बहुत सारे अब कैबिन्स बनते हैं कमर्शियल ऑफिसेज में, वैसे हम कैबिन्स का पार्टीशन कर रहे हो. बट जब पार्टीशन हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं कि पार्टीशन में बैठ जाओ, हम क्या कहते हैं? कैबिन में बैठ जाओ. सो दैट्स व्हाई प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज नोन एज पार्टीशन. क्या यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है? हो गया है. दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड, नॉट पार्टीशनड. ओके, प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं, हम प्रोसेस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. So that's why we have selected divided over here. Moving on to next one. He something the concept in a 1962 book. अब एक चीज, हम क्या हर वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं. वी आर सिंपली स्किमिंग इट. और स्किमिंग के बाद हम कुछ वर्ड्स जैसे स्टार्टिंग के पढ़ रहे हैं ब्लैंक से पहले, कुछ वर्ड्स ब्लैंक के बाद के पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमने फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग कर ली है. वी आर क्लियर कि हमें कौन से वर्ड्स लेने हैं, कैसे कंसेप्ट को बिल्ड करना है. बट अब अगेन यहाँ पे सारे ईडीज हैं, तो फिर से यहाँ पे कौन सा यूज होगा? यहाँ पे आपकी फिर से वोकैब बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड होगा आपको. ओके, राइट. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे फिर से हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को अप्लाई करेंगे. अब फ्रेम्ड क्या होता है? फ्रेम्ड होता है जब आप किसी चीज के आसपास फ्रेम लगा देते हो, तो दैट इज बीइंग फ्रेम्ड. ओके, राइट. अब स्कल्प्टेड क्या होता है? स्कल्प्टेड मीन्स आप स्कल्पचर बना रहे हो. जब आप किसी पत्थर से मूर्ति बनाना, जैसे स्कल्पचर बनाना कहते हैं, राइट, किसी मेटल के पीस से बनाना, उसको कार्व करना, कुछ भी, आप उसको स्कल्प्टेड कहते हो. अब आउटलाइंड क्या होता है? आउटलाइन मतलब जब आप किसी चीज की रूपरेखा या फिर आप उसकी एक जनरल ओवरव्यू या फिर एक बाउंड्री सी बनाते हो, जनरल ओवरव्यू देते हो. अब डिमार्केटेड क्या होता है? राइट. अब इतना तो आपको क्लियर है कि फ्रेम्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या कोई बुक के आसपास, वो कंसेप्ट के आसपास कोई फ्रेम लगाएगा? द आंसर इज नो. क्या वो किसी कंसेप्ट को किसी फिगर में या फिर उसमें ट्रांसफॉर्म करेगा? द आंसर इज नो. नाउ टू ऑप्शंस विच आर लेफ्ट एंड क्वाइट क्लोज वंस आर आउटलाइंड एंड डिमार्केटेड. अब मैंने आपको आउटलाइन बता दिया, मतलब जब हम रूपरेखा, ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल लुक, ब्रीफ बताते हैं या एक
थोड़ी सी क्लियर कट बाउंड्री सी बना देते हैं, ठीक है, तो हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं उस चीज की। अब डिमार्केटेड क्या होता है? बाउंड्रीज डिमार्केट होती हैं, बॉर्डर्स डिमार्केट होते हैं, मतलब हम यहाँ पे लिमिट बताते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना का जो अभी पीछे गलवान में क्लैश हुआ है, वो किस लिए हुआ है? क्योंकि बॉर्डर डिमार्केट नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। लिमिट्स नहीं पता है कि चाइना कहाँ तक पेट्रोल कर सकता है, इंडिया कहाँ तक पेट्रोल कर सकता है, डिमार्केशन नहीं हुई हुई है। तो बेसिकली आप फिजिकल लिमिट्स के थ्रू कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हो। क्या अब यहाँ पे कोई लिमिट की बात हो रही है कि उसकी जगह वहां तक है, उसकी पोजीशन यहाँ तक है? द आंसर इज नो। So that's why we are going to eliminate demarcated also। और अब हमारे पास एक राइट ऑप्शन कौन सा बचा है? आउटलाइन। चाहे आपको आइडिया हो ना हो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप एलिमिनेट कर चुके हो एंड यू आर गोइंग टू सिंपली पुट आउटलाइंड ओवर हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब Gutenberg Galaxy book है which was just as the television was starting to become popular। okay, अगेन सब ईडीज हैं, तो अगेन आपका vocab प्लस पीओई के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब आप मुझे ये बताइए, बुक हेल्ड होती है? अगर हम यहाँ पे हम बात करें, क्या बुक हेल्ड होती है? और यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, कॉलोकेशन भी यूज होगी, वी आर गोइंग टू सी दैट। क्या बुक हेल्ड होती है? नो, इवेंट्स हेल्ड होते हैं। बुक रिलीज इवेंट हेल्ड होता है, पर क्या कभी आपने देखा है बुक हेल्ड होती हो? द आंसर इज नो। बुक क्या होती है? बुक इज ऑलवेज रिलीज्ड। हम कहते नहीं है यार बुक रिलीज इवेंट है, बुक रिलीज का फंक्शन है, राइट? सो दैट इज अ कॉलोकेशन, बुक रिलीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आइडिया नहीं है कॉलोकेशन का, तब भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से एलिमिनेट कर सकते हो। बुक क्या प्रोवाइड की जाती है? विच वॉज प्रोवाइडेड जस्ट एज द टेलीविजन, मतलब दे दी थी जैसे टेलीविजन पॉपुलर हो रहा था साथ के साथ बुक दे दी थी? द आंसर इज नो। कंटेक्चुअली आपको सही ही नहीं लगेगा यहाँ पे प्रोवाइडेड को फिट करते हुए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्टेड। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती है, बुक तो रिटर्न होती है, राइट? बुक आप हमेशा रिटर्न करते हो। कभी सुना है कि मैं बुक कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं? द आंसर इज नो। So that's why it cannot be constructed also। So again, using our process of elimination, we have eliminated the 3 wrong options। and जो हमारा वैसे भी हमें पता है collocation के साथ word use होगा released, we are using it। Moving on to next one। This is quite interesting and simple because यहाँ पे अलग-अलग forms use हो रही हैं। Remember tense कौन सा मैंने आपको बताया था जब हमने skimming की थी? We discussed that that is your पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का रोल देखना कितना इंपॉर्टेंट है। स्किमिंग से आपको टेंस की इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे प्रेडिक्ट्स किस लिए यूज होता है? प्रेजेंट के लिए। हम कौन सी बात कर रहे हैं? 1962 की। तो कौन सी बात है? पास्ट टेंस की। प्रेजेंट की बात हो रही है? नहीं हो रही। आवर बॉयज फ्रेंड विच इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टू द रेस्क्यू, हमने प्रेडिक्ट रिमूव कर दिया। अब आईएनजी कब यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, जब आप बात कर रहे हो अभी भी वो चीज हो रही है। क्या वो अभी भी हो रहा है? द आंसर इज नो। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। अब प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन इज अ नाउन। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे राइटिंग के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, स्ट्रैटेजीज पता है, उनको पता होगा, राइट? हम शन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब प्रेडिक्शन, राइट, क्या है आपका? एक नाउन है जो कि एक प्रोसेस बताता है, ओके? पर क्या यहाँ पे कोई प्रोसेस बता रहा है? द आंसर इज नो। ही प्रिडिक्शन द वर्ल्ड, वैसे ही नहीं कोई तुक बनता। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा है जो कि करेक्ट है, और वैसे भी वो पास्ट फॉर्म है, प्रिडिक्टेड। So that's why we are going to fill predicted over here। and that is why I'm telling you the knowledge of grammar is very important to crack in your PT। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने ज़रूरी हैं। कौन सी वर्ब है, कौन सी एडजेक्टिव है, कौन सी एडवर्ब है, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन होना, डिटर्मिनर्स, साइन पोस्टिंग वर्ड्स, टेंसेस। हमने देखा हमने कैसे अभी एक टेंस के बेस पे ही सॉल्व किया, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग ब्लैंक्स ऑल्सो। irregular verbs or plurals, British English rules, sentences। This is a complete course which we teach to our students who are elite member, free for elite members and those who take institute coaching from us, and that is 25 to 30 lectures strong grammar course। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से we discuss in detail because we want कि आपका target score चाहे 79 प्लस है, चाहे 65 प्लस है, 58 प्लस है, that should come in your first attempt। Moving on to the next blank। अब हम यहाँ पे देख रहे थे an age everyone had, okay?
to the same information through technology. अब अगेन यहाँ पे क्या यूज होगा, collocation, और साथ में हम थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स की बात भी करेंगे. दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको रीडिंग में हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए, क्रैक करने के लिए रीडिंग. तो यहाँ पे व्हेन एवरीवन हैड रीड टू द सेम इंफॉर्मेशन, रीड टू द सेम नहीं होता, रेड हो सकता था, टू नहीं होता तो हम रेड कर सकते थे, बट है तो हम अपने फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ, विच इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, वी आर गोइंग टू यूज इट एंड गोइंग टू एलिमिनेट द रॉन्ग इंफॉर्मेशन. ऑब्टेन टू द सेम इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, राइट, ऑब्टेन नहीं हो सकता. ऑब्टेन द सेम इंफॉर्मेशन होता तो सोचते. अब एक्वायर इंफॉर्मेशन और एक्सेस इंफॉर्मेशन, अब एक कॉलोकेशन है, आपको भी पता है इंफॉर्मेशन क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है. अगर यहाँ पे एक्वायर टू भी नहीं होता बट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आपका ग्रामेटिकली कंटेक्सचुअली सेंस भी बनाएगा. एवरीवन हैड एक्सेस टू द सेम इंफॉर्मेशन, राइट. तो अब आप जब इसको फिट करके भी देखेंगे आपको लॉजिकल सेंस भी लगेगी, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एक्सेस. नाउ रीडिंग स्ट्रैटेजीज आपने देखा, देयर इज अ स्लो मेथड, व्हिच इज दैट स्लो मेथड जहां पे खुद आपको सब कुछ करना है. क्या आपको ये सब रीजंस पता थे, कॉलोकेशंस पता थी, स्ट्रैटेजीज पता थी रीडिंग की, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, टेंस के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो. सबसे बड़ी बात, स्लो मेथड क्यों है ये, स्लो मेथड के थ्रू आप क्यों चलते हो, बिकॉज आपको अपनी मिस्टेक्स खुद आइडेंटिफाई करनी होती है, अपनी रिसर्च करनी होती है और अपने आप को पढ़ाना होता है. दैट्स व्हाई यू मूव एट अ स्नेल स्पेस, बट देन सी ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. जो अभी आंसर्स हमने डिस्कस किए, एवरीथिंग इज करेक्ट. अगर आप हमारी स्ट्रैटेजीज को सही ढंग से फॉलो करोगे, मार्वल पीटी की स्ट्रैटेजीज यूज करोगे पीटी को सॉल्व करने के लिए, दैट इज अ फास्ट मेथड. एंड इन फास्ट मेथड एक सिस्टम है जो आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करेगा. आप स्पेशली डिजाइन कोर्स से लर्न करते हो. आर कोर्स इज सेपरेट फॉर 79 प्लस, फॉर 65 एंड 58 प्लस आर कोर्स इज डिफरेंट, and you can check your progress through our software. What is our strategy for reading and writing, filling the blanks? We put emphasis on context, lexical resource and grammar. कंटेक्स्ट में स्किमिंग, यू सॉ कैसे हमने स्किम किया, फॉरवर्ड रीडिंग की जिससे हमें पता चला बुक के बारे में है तो कॉलोकेशन हमने उस तरह से यूज की, इंफॉर्मेशन के बारे में थी तो कॉलोकेशन उस तरह से यूज की. बैकवर्ड रीडिंग भी यूज होती है, टोन पता करना बहुत जरूरी है, टोन के साथ टेंस पता करना जरूरी है. वी हैड सॉल्व वन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ टेंस की पास्ट टेंस है तो हमें कैसे अपने ब्लैंक्स फिल करने हैं. देन लेक्सिकल रिसोर्स में कॉलोकेशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू सॉ हाउ वी सॉल्व्ड इट. उसके साथ vocab, and vocab is something which you will build it over time. ग्रामर में टेंसेस की नॉलेज होना, यू हैव सीन कि हमने आज कैसे एक ब्लैंक अपना टेंस के बेसिस पे सॉल्व किया. पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना, पैरेललिज्म की नॉलेज होना, एक्टिव पैसिव की नॉलेज होना, प्रेपोजिशंस की नॉलेज एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज. Everything is very important if you want to crack your reading in first attempt, right? Now all the strategies which we teach are validated and proven strategies. अब आप पूछेंगे सर proof क्या है? Proof is in the ticker below. आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे जिन्होंने अपना टारगेट स्कोर अचीव किया, and these are our latest success stories. Right, you can see this student Ravinder has scored a perfect 90 in listening, reading, speaking and writing, right? Another student Gaurav, he has also scored 90 90 90 90 and उनकी pronunciation में 70 है वरना सारे 90 हैं. हरजीत कौर ने भी अपना टारगेट स्कोर अचीव किया है which is 79 प्लस, लिसनिंग में 87, रीडिंग में 89, स्पीकिंग में 90, राइटिंग में 88. तो अगर ये तीनों कर सकते हैं, एंड दीज आर जस्ट अ ब्रीफ स्नैपशॉट, वी हैव सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, राइट. तो अगर ये तीनों कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू आवर स्ट्रैटेजीज and software. Our software offers two modes. One is exam mode and time mode. टाइम मोड जब ऑन है तो आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करोगे. आपको उस प्रेशर का आइडिया होना चाहिए कि आपको 3 मिनट्स में ही RWFIB को सॉल्व करना है. वो हैबिट कैसे होगी? यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर. यहाँ पे आपको वो टाइम दिखा रहा है 3 मिनट्स का, तो आफ्टर 3 मिनट्स ऑटो सबमिट हो जाता है. ऑटो सबमिट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको पता होगा कि यार मेरे तो आंसर्स ही नहीं सॉल्व हुए, मुझे थोड़ी जल्दी प्रिपेयर करना है. सो दैट्स हाउ यू गेट प्रिपेयर्ड. एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू आवर सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस. अब आप ये देखिए जो क्वेश्चंस आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, इट टेल्स यू आपके कौन से करेक्ट हैं, कौन से पार्शली करेक्ट हैं. देन यू कैन क्विकली रिवाइज दोज जो आपके इनकरेक्ट हैं या पार्शली करेक्ट हैं.
कैसे करोगे? यहाँ पे एक शो मी का बटन आता है, जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो इसको क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू सी कौन से ऑप्शंस गलत हैं, क्या सही आंसर है, कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं. दिस वे इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर वोकैब, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड योर मेमोरी जब आप आंसर्स को लर्न करते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव 2.5 to 3 minutes to solve your reading and writing filling the blank. उसमें आपको कंटेंट स्किम करना होता है. You have to look for clues, you have to find pointers, and process of elimination is our best friend forever. BFF, remember that. Consider Marvel PT as the center of the PT universe, जहाँ पे आप concepts को understand करते हो, learn करते हो, implement करते हो और perfect करते हो. और perfection कैसे आती है? जब आपको कोई feedback देता है. For that, we have a correction and feedback service. Just me and my team gives you feedback for complete speaking, complete writing, and complete listening. Always remember, this is a trophy which you have to win. This can be your target score 79 plus, 65 plus, 58 plus, and we want you to achieve that in first attempt. But अगर आप हमारी strategies को follow नहीं कर रहे हो या modify कर रहे हो, you will not be able to score. But if you are following it, you will be able to win this trophy. एंड जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे. अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस, evaluation and monitoring are very important, and for that we have sent for evaluation service जहाँ पे आप हमसे feedback ले सकते हो. Correction service, this is our WhatsApp number 8699121121. You can contact us for coaching, for any questions or doubts, and do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a daily basis. We give wings to your dreams.